ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बता दूं, मैं बहुत अच्छा हूं। ये डिस्टरबेंस जिनके यहाँ भी है वो म्यूट कर लें माइक। ओके, एक बार बहुत फास्ट विद इन 5 मिनट्स रिकैप करते हैं और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ कंपनी। डेफिनेशन ऑफ कंपनी में हमने दो डेफिनेशन देखी थी, लॉर्ड जस्टिस लिंडले की और हेनी की। तो अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन who have agreed to contribute their wealth in capital of the company. Such capital is divided into parts, and one such part is called as shares. And company is artificial person. It has separate legal entity and common seal. Clear? हैने की definition देखी थी. Thereafter we had discussed characters. ये जिसके यहाँ भी disturbance आ रहा है वो mute कर लें अपना mic. Okay. Then we had discussed characteristics of a company. So characteristics एक बार बहुत short में देखते हैं. It is an incorporated association. Incorporated means registered. Company is an artificial person. Artificial, there are two types of person: natural person like human beings and artificial person. Artificial persons are created by law. So company is also created by law. It is dissolved also by following the process, legal process. And separate legal entity, a company is a separate legal entity and it is different from its members. Members may sue on company, company may also sue on members. Clear? Then we had a discussion on perpetual. Company has perpetual existence. Perpetual existence means company cannot be created, company cannot create by itself, company cannot die in itself. So it has perpetual existence. Perpetual existence means a company continues forever. Then common seal, because company is an artificial person, so it has a common seal. It is a rubber stamp. So wherever company is bound to make signature, a common seal is affixed. विशाल शर्मा है, तुम्हारे डिस्टर्बेंस आ रहा है? सूरज यादव, ओके. देन लिमिटेड लाइबिलिटी हमने डिस्कस किया था. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज. लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी. सो लाइबिलिटी ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड. Then transferability of shares. Companies shares are transferable. Members may freely transfer. In case of public limited company, there is no restriction. In case of private limited company, there may be some restrictions. Then separate property. Company has a separate property. If you are owner of 10% of share capital of any company, that doesn't mean you are the owner of every property. You are the 10% owner of every property of the company. So desire वाला example देखा था. Delegated management. So company is done by board of directors. Board of directors are known as delegated management. Capacity to sue. Company can file case against other members. Members also can file suit on company. Similarly, company can also file suit on other public, other persons, and they may also file suit on company. Then termination or death. Company cannot die like natural persons. Similarly, company cannot take birth like natural person. Companies are created by following legal process. Similarly, companies are dissolved by following legal process. It has nationality. Companies has nationality like Indian company or foreign company. Indian company means any company which is registered or incorporated under Indian Companies Act 2013 or any of the earlier Companies Act. No citizen and fundamental rights. Companies don't enjoy any fundamental rights like human beings or citizens of a country enjoys, and company does not have. Company is not called as a citizen. Clear? फिर हमने एक असाइनमेंट दिया था कंपनी और पार्टनरशिप, डिफरेंशिएशन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, ये आपको करना है. देन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने चार्टर्ड कंपनी देखी थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी. कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लासिफिकेशन में हमने कई सारे क्लासिफिकेशन स्टडी किए थे. उनमें से पहला था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे फर्स्ट कंपनी चार्टर्ड कंपनी लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ डेज दे आर नॉट पॉसिबल, दे आर नॉट इन एग्जिस्टेंस.
Statutory companies, any company which has been formed by passing a particular act, special act in the parliament or in the state legislative assembly. Example: LIC, UTI, SBI, RBI. They are the examples. These companies have they are governed by their individual separate act. If their act is silent, their individual act like SBI Act or LIC Act, if these acts are silent on any topic, then provisions of Companies Act will apply. Otherwise, provisions of Companies Act will not apply. Then registered or incorporated companies means companies which we are going to study in detail in all the units. Companies which are incorporated, which have been incorporated or which are incorporated under Indian Companies Act 2013 or any of the other previous act. So second differentiation on the basis of liability of members. So companies limited by share, limited by guarantee and unlimited company. यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था. अब देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स. नेक्स्ट डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स. On the basis of number of members, there are two types of companies. One is private limited company and second is public limited company. Another is one man or one person company. This is a new concept introduced by Companies Act 2013. Companies Act 2013 से नंबर ऑफ पर्सन के बेसिस पे दो ही तरह की कंपनीज होती थी, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. कंपनीज एक्ट 2013 ने एक और नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज वन पर्सन कंपनी. तो देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मींस व्हाट. Private limited company is a company in which, first of all, any company which is having at least 1 lakh rupees share capital. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में जो शेयर कैपिटल होगी वो कितनी होनी चाहिए? पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 1 लाख होनी चाहिए. क्लियर? और मैक्सिमम मेंबर्स, मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 2 और मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 200. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं बताओ? मैक्सिमम 200. मैक्सिमम 200 और मिनिमम 200 मिनिमम 2. मिनिमम 2. क्लियर? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लिमिटेशन. अब क्या होता है, एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं जो 3 तरह के रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करती है. 3 तरह के रिस्ट्रिक्शंस देखो, 1, 2 और 3. देखो क्या है ये रिस्ट्रिक्शंस? 3 रिस्ट्रिक्शंस. फर्स्ट, इट रिस्ट्रिक्ट्स राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ट्रांसफरेबिलिटी पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं. दैट मींस फ्री ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होती है. इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी यू मे ट्रांसफर योर शेयर्स freely, whereas in private limited company they place some restrictions in their article of association. तो पहला रिस्ट्रिक्शन तो क्या होगा? पहली लिमिटेशन तो क्या हो गई कि रिस्ट्रिक्शन होगा, ट्रांसफरेबिलिटी फ्री नहीं होगी इन कंपनीज की. क्लियर? एंड सेकंड, जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 200 से ज्यादा नहीं होंगे. और तीसरा, प्रॉफिट्स इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब, यानी पब्लिक ऑफरिंग नहीं करेंगे, पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं करेंगे. तो एक कंपनी, अ कंपनी इज सेड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी if it places following 3 restrictions through its article of association. तो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ही ये जो 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाती है ये कंपनीज? तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू. और क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? देखो 3. पहला रिस्ट्रिक्शन तो ये है कि इसके जो मेंबर होंगे, वो मेंबर्स जो होंगे वो लेस देन 200 होंगे, लेस देन और इक्वल टू. क्लियर? पहला रिस्ट्रिक्शन क्लियर है, 200 मेंबर्स ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते. दूसरा रिस्ट्रिक्शन है कि जो शेयर्स का ट्रांसफरेबिलिटी है, वो शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे. शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे. फ्री ट्रांसफर नहीं होगा, यानी इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे. और थर्ड, नो पब्लिक सब्सक्रिप्शन. किसी भी तरह का पब्लिक सब्सक्रिप्शन, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज स्टॉक मार्केट के थ्रू शेयर्स एप्लीकेशन इनवाइट करती हैं और पैसा कलेक्ट करते हैं, वैसे ये कोई पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे. क्लियर है? ये बातें समझ में आती हैं?
तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो है जिसकी पेड अप कैपिटल कम से कम 1 लाख हो और वो 3 रिस्ट्रिक्शंस लगाए अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू अपने ऊपर। कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन? फर्स्ट, उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो मेंबर्स वो लेस देन 200 हो। दूसरा, शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो। और तीसरा, पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकती पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह। तो इन्हें पैसा कहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा? अपने पर्सनल सोर्सेज से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो पर्सनल सोर्सेज क्या होते हैं? डायरेक्टर्स के जो प्रमोटर्स हैं उन प्रमोटर्स के रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। दैट मीन्स जो पैसा कलेक्ट करेंगे, नो पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब जो पैसा कलेक्ट करेंगे वो पैसा कहाँ से कलेक्ट करेंगे? पर्सनल सोर्सेज से, पर्सनल सोर्सेज। क्लियर है? पर्सनल सोर्सेज से कलेक्ट करेंगे ये पैसा पब्लिक के थ्रू नहीं करेंगे। जैसे आप अननोन पर्सन से नहीं मांग सकते, यानी पर्सनल सोर्सेज क्या होते हैं? नोन पर्सन्स, जो आपके नोन पर्सन्स होंगे उन नोन पर्सन से ही आप पैसा कलेक्ट करेंगे। क्लियर? अननोन पर्सन से कलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है? अननोन पर्सन से अगर कलेक्ट करते हैं तो वो इन्विटेशन टू द पब्लिक ही माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकम टैक्स एक्ट ने डिफाइन, कंपनीज एक्ट ने डिफाइन कर दिया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है सेक्शन 268 में। फिर उन्होंने कहा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने डिफाइन कर दिया, तो पब्लिक क्या होती है? जो पब्लिक प्राइवेट नहीं है। क्लियर? तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डिफाइन कर दिया तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है? जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। समझ गए? तो उन्होंने यही कहा, सबसे पहले क्या कहा पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक है। और मिनिमम पेड अप कैपिटल पब्लिक लिमिटेड कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 लाख रुपए होनी चाहिए। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी थी? मिनिमम 1 लाख। ऐसे यहाँ पे मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। तो कोई भी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। क्लियर? अब एक नया कंसेप्ट आता है वन मैन कंपनी। सोल ट्रेडर्स होते हैं बहुत सारे, तो एक नीड थी, एक रिक्वायरमेंट थी, एक लॉन्ग लास्टिंग डिमांड थी। सोल ट्रेडर हैं और वो सोल ट्रेडर का ही स्टेटस रहना चाहते हैं, किसी को पार्टनर नहीं बनाना चाहते, किसी को शेयर होल्डर नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पे रिक्वायरमेंट कंपनी की है। कई सारे बिजनेस, कई सारे लाइसेंसेस गवर्नमेंट के, बहुत सारे जगह लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि दे कैन बी प्रोवाइडेड ओनली टू अ कंपनी, तो कंपनी को ही ये वर्क अलाउ होगा। तो ऐसे केस में वो उन्हें भी अथॉरिटी मिले और वो काम कर पाए। तो कंपनीज एक्ट ने 2013 ने एक नया कंसेप्ट स्टार्ट किया, वो था वन पर्सन कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी को बहुत इजी, इसका जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है वो इजी रखा, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट इजी रखा, कंप्लाइंस इजी रखा। यानी कि ये ऐसी कंपनी जो सबसे छोटे फॉर्म की होगी, जिसमें कि कैपिटल तो 1 लाख रुपए होगी मिनिमम, लेकिन ये जो पेड अप कैपिटल और ये जो कंपनी होगी उसमें क्या होगा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होगी, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जैसे मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, वो ना होके इसमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 1 पर्सन एज अ मेंबर, केवल एक ही पर्सन होगा। और जो प्रोसीजर्स होंगे इस कंपनी के, वो सारे प्रोसीजर्स बहुत सिंपल होंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से भी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होंगे, इजी रजिस्ट्रेशन होगा, कंप्लाइंसेस कम होंगे, ऐसे बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स कम होंगे। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं फिर होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी। तो होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी क्या है? देखो, एक कंपनी होल्डिंग और सब्सिडी कब होती है? 4 बातें हैं। पहला, एक कंपनी अगर वन कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% क्या एक्वायर कर ले? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर एक्वायर करने का मतलब उन्हें वोटिंग राइट मिल गया। ठीक है? तो पहला रीजन जिससे कंपनी होल्डिंग हो जाएगी, तो ऐसा होगा तो इस कंपनी को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, क्योंकि इनके पास वोटिंग पावर आ गई मोर देन 50%, यानी कंट्रोलिंग राइट आ गया। और इस कंपनी को बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। क्लियर? दूसरा तरीका, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के एक कंपनी दूसरी कंपनी के क्या करे? इक्विटी मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स।
प्रेफरेंस शेयर्स कौन से? प्रेफरेंस शेयर्स वो जिन्हें वोटिंग राइट है, वोट दे सकते हैं जो। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों मिला के अगर 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर ले, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन्हें वोटिंग राइट है, तो भी कंट्रोल आ गया। तो ये कंपनी को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी और इस कंपनी को बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir. ओके गुड। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? अगर देखते हैं ए कंपनी है, ए कंपनी की सब्सिडरी है बी कंपनी और बी कंपनी की सब्सिडरी है सी कंपनी, तो ए की सी भी सब्सिडरी है। ए की बी क्या है? ए की बी सब्सिडरी कंपनी है, यानी ए होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी ऐसे समझ सकते हो, ये होल्डिंग कंपनी है, बी उसकी सब्सिडरी कंपनी है और ये इसकी सब सब्सिडरी कंपनी है, सब सब्सिडरी। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ कि ए की बी तो सब्सिडरी कंपनी है ही, क्योंकि इन्होंने 51% से ज्यादा शेयर परचेज किए, तो सब्सिडरी है। क्वेश्चन ये राइज हुआ ए की क्या सी भी सब्सिडरी कंपनी है? क्योंकि इन्होंने कितने परचेज किए? मोर देन 50% शेयर परचेज किए हुए ए ने बी के, और बी ने सी के मोर देन 50% शेयर परचेज किए। तो ए की सब्सिडरी कौन है? बी, और बी की सब्सिडरी कौन है? सी। तो ए की सब्सिडरी कौन मानी जाएगी? सी भी ए की सब्सिडरी मानी जाएगी। यानी एक बार अगर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट होता है तो पूरी चेन का होता है, तो उस चेन में जितनी भी डाउन द लाइन कंपनीज हैं वो सभी सब्सिडरी कंपनीज हो जाती है। समझ गए? कारण ए का बी के ऊपर कंट्रोल है कि नहीं, ये बताओ। मोर देन 50% शेयर्स का मतलब है कि एक कंपनी 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। यानी 50% से ज्यादा अगर वोटिंग राइट है तो उस कंपनी के पास डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट होता है। यानी सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट 50% वोटिंग पावर से आ जाता है। तो सारे डायरेक्टर्स अगर एक कंपनी अपॉइंट कर सकती है तो सारा कंट्रोल उस कंपनी के पास है। तो ए के पास बी का कंट्रोल है ना? बताओ यस और नो। यस सर। और बी के पास सी का कंट्रोल है। यस सर। इसका मतलब ए के पास सी का भी कंट्रोल है इनडायरेक्टली। तो ए बी सी तीनों, तो ए की सब्सिडरी कौन है? ए की सब्सिडरी बी भी है और ए की सब्सिडरी सी भी है। समझ गए? क्लियर? और अगर सी के अंडर में कोई कंपनी है, सी के अंडर में कोई डी कंपनी है, यानी ये सी की क्या है? डी सब्सिडरी, यानी सी ने डी में 50% से ज्यादा शेयर्स परचेज किए हैं, मोर देन 50% शेयर परचेज किए हुए हैं सी ने डी में। तो ए की सब्सिडरी कौन है? बी भी है। ए की सब देखो, ए की सब्सिडरी बी भी है, ए की सब्सिडरी सी भी है और ए की सब्सिडरी डी भी है। समझ गए? अगर बी की बात करें तो बी की सी भी सब्सिडरी है और डी भी सब्सिडरी है, और सी की बात करें तो सी की डी सब्सिडरी है। ये बात समझ में आती है? पूरी चेन सब्सिडरी हो जाती है। क्लियर? ये तीसरा रीजन था। फोर्थ रीजन देखते हैं। फोर्थ रीजन है अगर एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। ऐसे कंट्रोल करती है कि वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है दे आर एकस्टम टू इट। ये कंपनी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। क्यों करती है? क्या रीजन है? वो कोई भी रीजन हो सकता है, एनी रीजन। तो इस कंपनी को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी और इस कंपनी को बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। समझ गए चारों पॉइंट? यस सर। पहला सिंपल है, अगर ये 50% से ज्यादा, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो 51%, अगर एक कंपनी बी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर परचेस कर लेती है तो होल्डिंग सब्सिडरी। दूसरा, अगर 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर प्लस ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन्हें वोटिंग राइट है उनके 50% से ज्यादा शेयर परचेस कर लेती है तो होल्डिंग सब्सिडी। तीसरा, ए की बी सब्सिडरी है, बी की सी सब्सिडरी और सी की डी सब्सिडरी है, तो ए की बी भी सब्सिडरी होगी, बी की सी भी, ए की सी भी सब्सिडरी होगी, ए की डी भी होगी। यानी ए के लिए बी सी डी तीनों सब्सिडरी, बी के लिए सी और डी सब्सिडरी और सी के लिए डी सब्सिडरी। यानी पूरी जो डाउन द लाइन चेन होती है वो पूरी सब्सिडरी बन जाती है। क्लियर है? तो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन है, सेम बात लिखी है। एक और नया कंसेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 ने इंट्रोड्यूस किया, उससे पहले नहीं था, वो है एसोसिएट कंपनीज। एसोसिएट कंपनी क्या होता है? दिस इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। ये जो कंपनी है ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी नहीं है। ये जो कंपनी है वो क्या है? सब्सिडरी कंपनी तो नहीं है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है, और सब्सिडरी कंपनी नहीं है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कि 20% से ज्यादा जो टोटल शेयर कैपिटल है वो है एक कंपनी के पास। यानी एक कंपनी के पास, ये कंपनी है
और ये कंपनी के पास दूसरी कंपनी की ए कंपनी है मान लेते हैं, ये बी कंपनी है, और ए कंपनी के पास बी कंपनी के मोर देन 20% क्या है, शेयर कैपिटल। क्लियर? अगर मोर देन 20% और लेस देन 50%, 20 से 50% के बीच में, क्योंकि 50 से ज्यादा होंगे तब तो होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप हो ही जाएगा क्रिएट। तो 50 से कम है लेकिन 20 से ज्यादा है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि 20% से लेके और 50% तक अगर शेयर कैपिटल है तो ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है, एसोसिएटेड कंपनीज। क्लियर? तो ए और बी एसोसिएटेड कंपनीज। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये क्लियर हो गए। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी होती है इफ इन एनी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन और स्टेट गवर्नमेंट अलोन और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन कॉम्बिनेशन holds more than 50% shares in any other company, then it is called as government company। तो देखो गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल फर्स्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में कितने, मोर देन 50% शेयर्स परचेज कर लिए किसी कंपनी में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो इस कंपनी को क्या बोलेंगे, इस कंपनी को बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। समझ गए? सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट ने परचेज कर लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने कितने परचेज कर लिए, मोर देन 50% शेयर्स, केवल स्टेट गवर्नमेंट ने, तो इस कंपनी को भी क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। या फिर तीसरा केस, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी, इन तीनों ने मिलके, किसी कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तीनों ने मिलके अगर किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स परचेज कर लिए तो इस कंपनी को भी क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। समझ गए? क्लियर? Yes, Yes, sir. लेकिन गवर्नमेंट कंपनी का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं होता। गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉइज क्या होते हैं, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं? नहीं, ये केवल एक स्टेटस है कि ये गवर्नमेंट कंपनीज है। क्यों गवर्नमेंट कंपनीज है? क्योंकि इन कंपनीज के ऊपर कुछ तरह के रूल्स रेगुलेशन सेपरेट अप्लाई होंगे, कुछ तरह के सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे इन कंपनीज पे। ठीक है, ये जो तीनों कंपनीज हैं, ये कंपनीज क्या हैं, ये सब कंपनीज क्या हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं। क्या हैं? इन्हें बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या उनके कॉम्बिनेशन के पास इनके 50% से ज्यादा शेयर्स हैं, तो एक तरह से ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो ओनरशिप अगर गवर्नमेंट के पास है तो फिर इन्हें गवर्नमेंट कंपनीज बोलेंगे। इनका जो ऑडिट होता है वो अलग तरीके से होता है गवर्नमेंट कंपनीज का। ठीक है, कुछ प्रोविजंस इन पे अलग तरह से अप्लाई होते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो देखो एक बार देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय, किसके पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या पार्टली दोनों में से किसी के पास हो। क्लियर है? क्लियर? एक और बात है, अगर गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसे भी क्या बोलेंगे, उसे भी गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% है इस कंपनी के और इस कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो वो सब्सिडरी कंपनी भी क्या होगी, सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। फिर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। फर्स्ट इज इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी क्या होती है, एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनी क्या है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। समझ गए? 2013, 1956 या किसी भी और अर्लियर कंपनीज एक्ट में, अगर इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसे बोलते हैं इंडियन कंपनी। और फॉरेन कंपनी किसे बोलते हैं, एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुई।
यानी इंडिया के बाहर के किसी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हुई, और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, इंडिया में वो बिजनेस कर रही है। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई, इनकॉर्पोरेटेड हुई, और उसका जो बिजनेस है वो कहाँ है, इंडिया में है। तो ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। क्लियर है? यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो हमारे पास 4 मिनट्स हैं अभी, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा, कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो देखते हैं कितने तरह की कंपनीज होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस हैं कंपनी को डिफरेंशिएट करने के। तो पहला बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज बाय मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी उनके इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे। तो 3 तरह की कंपनीज होती हैं, एक चार्टर्ड कंपनी, दूसरी हाईलाइटर लेते हैं इससे आपको क्लैरिटी आएगी। क्लियर? तो चार्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी जैसे एग्जांपल लिया था हमने ईस्ट इंडिया कंपनी, नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। सेकंड, स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी कंपनीज के एग्जांपल क्या थे, जैसे LIC, UTI, SBI, है ना, RBI, ये सब क्या थे, स्टैट्यूटरी कंपनीज, जिनके लिए सेपरेट एक्ट होता है। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था रजिस्टर्ड कंपनीज और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, जो हमें पढ़ना है नेक्स्ट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी के बेसिस पे हमने क्या देखा था, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर देखा था लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। फिर देखा था अनलिमिटेड कंपनीज। क्लियर है? फिर देखा था यस सर। अनलिमिटेड कंपनीज। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स ये तो आज ही देखा। तो नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे 3 तरह की कंपनीज, फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेकंड 1 पर्सन कंपनी, और थर्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। फिर देखा था ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो कंट्रोल के बेसिस पे होल्डिंग कंपनी, फिर देखा था सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएटेड कंपनीज, 3 कंपनीज। क्लियर? फिर देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी, ओनरशिप के बेसिस पे गवर्नमेंट कंपनीज और नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। और लास्ट हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, तो नेशनलिटी के बेसिस पे इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज। क्लियर है? तो आप सभी को टाइप्स ऑफ कंपनीज क्लियर है? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके, गुड। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, यानी फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, कंपनी को फॉर्म कैसे करते हैं। तो 4 स्टेप्स होंगे फॉर्म करने के, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो ऐसे करके 4 स्टेप्स होंगे। तो वो 4 स्टेप्स देखेंगे, व्हाट इज प्रमोशन क्या होता है, फिर इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, फिर बिजनेस का पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है। क्लियर? तो ये 4 स्टेप्स में हम इनकॉर्पोरेशन देखेंगे। एक बार आगे का प्लान बता देते हैं। उसके बाद में 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं कंपनी के। पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और थर्ड प्रोस्पेक्टस। तो तीनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज लाइक अ चार्टर ऑफ अ कंपनी, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंसिस्ट ऑल द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी के जो इंडोर मैनेजमेंट होता है, वो इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो देखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और प्रोस्पेक्टस, जैसे कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है वैसे ही प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का। पब्लिक सब्सक्रिप्शन के समय ऑल कंपनीज आर बाउंड, लीगली बाउंड टू इशू प्रोस्पेक्टस। इट कंसिस्ट ऑल द डिटेल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, सो क्लियर है आज का डिस्कशन? इतना आपको समझ में आता है टाइप्स ऑफ कंपनीज? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. good, very good. If you have any query, then ask. No, Otherwise, sir. no? Okay. No, sir. Okay, then thank you for your patient watching of the lecture. Thank you all. Signing off.